हाँ जी, नाउ इट हैज स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ जी बेटे, दिस इज द 16th क्वेश्चन. Very simple. If consumption at zero level of income is rupees 40 crore and investment multiplier is 4, then determine the relevant consumption. ठीक है. So consumption at zero level of income. Sukhjeet ma'am, now I have made you the host again. Sukhjeet ma'am, if you are listening to me, I have made you the host again. हाँ जी मैम, ठीक है. ठीक है जी, ठीक. हाँ जी बेटे. To consumption at zero level of income, that means we are already given autonomous consumption equal to 40, ठीक है, and investment multiplier is already given. They have given k की value is already given 4, or we have been asked to determine the relevant consumption function. Very simple. तो कंजम्पशन फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? लेट अस सी. फॉर्मूला क्या होता है उसका? इक्वेशन C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई. ठीक है. A मीन्स ऑटोनमस कंजम्पशन, दैट इज ऑलरेडी गिवन. Y की जगह तो Y हम वैसे ही लिख देंगे. B का मतलब MPC. MPC is required. So now we will come to know that with the help of this multiplier value, very easily we can get the value of MPC. So let us see how can we do that. तो पहले ये इजी फॉर्मूला लगा लेते हैं. K इज इक्वल टू 1 बाई MPS. ठीक है. K की वैल्यू पुट कर दो 4. टीचर इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 ओवर MPS. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट MPS इज इक्वल टू 0.25. ठीक है. नाउ इन द कंजम्पशन फंक्शन वी डोंट रिक्वायर MPS, हमें चाहिए MPC. तो क्या कर लेंगे? सीधा इसको वैल्यू को वी कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1. तो MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS. ठीक है. तो ये हो गया 1 में से 0.25 माइनस कर दिया, आ गया हमारे पास 0.75. तो ये 0.75 इज अवर वैल्यू ऑफ MPC. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू. पहले आप लिख लो, यू जस्ट राइट डाउन C कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू A प्लस बी वाई. देन इन प्लेस ऑफ द गिवन वैल्यूज लेट अस सब्स्टिट्यूट. C is equal to A की प्लेस पे we have written 40 which is given in the question, plus B we have calculated 0.75, so we have written here 0.75. Y ऐसे ही लिख देना. ठीक है. Because we have not been given the value of Y, तो उसको as it is ही लिख देना. Then after that encircle this value. This has become our answer, right? So this type of question can be there also for 3 marks. Now 17th question and rest of the question you can do. ठीक है जी. Now I want to come to next part which is important. Some of you may find it difficult, but otherwise it's not difficult if you have done the practice of previous part also. Now practicals on the determination of equilibrium level. I am going to start 18th 19th question is easy, that you can do later. अपने आप कर सकते हो उसको. Question number 20 से I am starting. That is question number 20 is, you can please read. In a two-sector economy, the income and consumption function are, आगे दिया हुआ है, y is equal to C plus I. ये this is income. ठीक है. ये income की वैल्यू क्या है? y is equal to C plus I. y का मतलब क्या होता है? AS. और C plus I का मतलब क्या होता है? Aggregate demand. तो हमें क्या दे दिया हुआ है? They have given AS aggregate supply is equal to aggregate demand. ये हमें equation की form में already given. Then C function is given 50 plus 0.8y, 80y. If investments are 50 crore rupees, then calculate number 1 equilibrium level of income, second level of consumption at equilibrium, third saving. 3 चीजें हमने निकालनी है. ठीक. तो सबसे पहले तो क्या करना है? कोई घबराना नहीं है. It's very easy. Firstly, you write down whatever is given. हमें जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं. तो पहले हमें वी हैव बीन टोल्ड दिस
y इज इक्वल टू सी प्लस आई। इसका मतलब ये सिचुएशन कब होती है? व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। यही करते हैं ना हम AD/AS अप्रोच के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट दैट पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो ये क्या है? ये C प्लस आई क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड कंपोनेंट्स उसके, और ये y क्या होता है? दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। तो आप चाहो तो यू कैन राइट, ये मैंने नीचे करके लिख दिया, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अच्छा उसके बाद व्हाट एल्स इज गिवन? सी इज गिवन, तो एज इट इज वी कैन राइट 50 प्लस 0.280y, ये हमें दिया है। और एक और चीज दी हुई है, इन्वेस्टमेंट, दैट इज गिवन 50 करोड़, 50 लिख दिया। ठीक, करोड़ एंड में लिखेंगे, अभी ओनली नंबर्स आर टू बी रिटन, ये हमने लिख लिया। नाउ दे हैव आस्क्ड कि पहले आप हमें पूछा है कि बताइए व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क डालिए, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक, अच्छा अब हमने क्या करना है? प्रॉपरली सारा कुछ लिख देना है। एट इक्विलिब्रियम लेवल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, अब दोनों चीजें इक्वल हैं, तो इसका मतलब चाहे हम AS को पहले लिख लें, AD को राइट साइड पे लिख दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक, अब क्या करना है? ये लिख दिया, दोबारा से लिख दिया, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। नाउ इन प्लेस ऑफ दिस एग्रीगेट सप्लाई व्हाट इज इट्स अदर नेम? इट्स अदर नेम इज वाई, क्योंकि हमने इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है ना, तो AS का दूसरा नाम लिख दिया यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू AD की जगह पे उसके जो कंपोनेंट्स हैं, we are writing those components. AD is the sum of consumption plus investment, C plus I. ठीक, अब क्या करना है? वेरी सिंपल, नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज विच आर गिवन टू अस। y की वैल्यू हमें नहीं पता है, वो तो निकालनी ही है, तो y एज इट इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ दिस c फंक्शन इज गिवन, तो c की जगह c का फंक्शन, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू डू साइड बाय साइड, तो c की जगह पे c फंक्शन की वैल्यू लिख देते हैं 50 प्लस 0.8y, ये लिख दिया ब्रैकेट में 50 प्लस 0.880y। ठीक, प्लस ये प्लस का साइन, इन्वेस्टमेंट इट्स वैल्यू इज गिवन, ये वाली वैल्यू 50, तो ये प्लस कर दिया 50। ठीक, अब हमने क्या करना है? ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा, जो नंबर्स हैं दे कैन बी एडेड, नाउ ऑल साइंस प्लस के साइंस हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे ये हो जाएगा 50, और ये वाला 50 ऐड होके इट हैज बिकम 100 प्लस 0.80y। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन में आप क्या करो? नाउ अब ये जो y है, y को तो हमने कैलकुलेट करना है, तो लेट अस टेक दिस 0.80y टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो here toward on right side it is a positive value, plus value है, when we take it to the left side तो ये plus का sign इधर आके it will become negative sign, तो y minus 0.80y is equal to ये 100। ठीक, तो ये y कितने है? दिस इज 1y, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमें सीधा ही पता चल जाता है, तो y में से 1y में से 0.80y निकाल दिए तो बच गए 0.20y इज इक्वल टू 100। फिर आप y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 0.20, ये सारा पॉइंट को रिमूव कर दे, सारा करके वी आर गेटिंग इनकम इक्वल टू ₹500 करोड़। ठीक, अब ये वाले टाइप के जो क्वेश्चंस है ना डिटर्मिनेशन वाले में, इसमें आपने मेन बात ये याद रखनी है, AD इज इक्वल टू AS या AS इज इक्वल टू AD, और आगे उसके कंपोनेंट, AS की जगह Y और AD की जगह C प्लस I, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में हमें ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बाद में आई विल सेंड द पिक्चर्स ऑल्सो, येस्टरडे आई फॉरगॉट, आई विल सेंड दोज पिक्चर्स ऑल्सो टुडे, कल वाले क्वेश्चंस की भी भेज दूंगी। नाउ दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछा है? सेकेंड पार्ट पूछा गया है हमें कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है जी, तो वेरी सिंपल, कंजम्पशन फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन टू अस, C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.80y दिया ही हुआ है हमें। अब क्या करना है? वी हैव कैलकुलेटेड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, पीछे जो निकाला है 500 रुपीज़ निकाला ना, रुपीज़ करोड़, तो बस कुछ नहीं करना, C फंक्शन में इन प्लेस ऑफ दिस y, ठीक है, 500 रुपीज़ करोड़ वैल्यू पुट कर देनी है, y की जगह y की वैल्यू दैट इज 500। अब आप ये पॉइंट को जब सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाय 100, अब मैंने रफ वर्क नहीं किया यहाँ पे, दैट यू कैन डू योरसेल्फ, तो ये सारा कट कट आके हमारा जो बचेगा दैट विल बी C विल बी इक्वल टू ₹450 करोड़। ये कैलकुलेशन आपने रफ काम में कर लेनी है, ठीक है, ताकि हमारा फेयर वर्क नीट रहे, तो 450 रुपीज़ करोड़, दिस इज द सेकेंड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या पूछा हुआ था? सेविंग, या प्लीज नंबर 3 कर लेना, थर्ड पार्ट सेविंग। नाउ सेविंग इज इक्वल टू, दिस इज इजी, दैट इज इनकम माइनस कंजम्पशन।
तो इनकम वी हैव ऑलरेडी गॉट, फर्स्ट पार्ट में इनकम निकाला था 500 माइनस सी की वैल्यू हियर वी हैव गॉट 450, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 500 माइनस 450 इक्वल टू ₹50 करोड़. तो इन दिस मैनर वी विल गेट ऑल द 3 पार्ट्स. ठीक है, आई होप यू ऑल हैव डन साइड बाय साइड ऑल्सो. ठीक है जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, पहली बार करते हैं तो नया नया थोड़ा सा लगता है पता नहीं कितना लंबा चौड़ा काम है, ऐसा कुछ नहीं. व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस तो यू विल एंजॉय दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ लेट अस ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 21. So please read the statement. The function of saving is given to be, means saving function is given, minus 40 plus 0.25y. If planned investments are 100 crore rupees, then determine, again 3 types of things are to be determined. क्या क्या निकालना है? Equilibrium level of income, second level of consumption at equilibrium, and then saving at equilibrium. Very simple and interesting. So first step, कोई भी क्वेश्चन हो एक एक लाइन पढ़ते जाओ और लिखो आप, यू जस्ट राइट व्हाट इज गिवन. ठीक है, एक लाइन पढ़ लेते हैं. तो हमें क्या दिया हुआ है? गिवन सेविंग फंक्शन इज गिवन, तो लिख लेते हैं गिवन सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू सेम वैल्यू लिख ली विच इज गिवन माइनस 40 प्लस 0.25y. फिर कॉमा लगा लिया आपने, नीचे लिखना नीचे भी लिख सकते हो. इन्वेस्टमेंट इज गिवन 100 रुपीज करोड़, सबसे बाद में लिखना है, हेयर बस नंबर्स ही लिख देने हैं 100. ठीक, नाउ अब फर्स्ट पार्ट जो निकालना है, नंबर फर्स्ट. नाउ वी नो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ये लिखना है साथ में, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हाट इज देयर? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. आई होप यू रिमेंबर 2 अप्रोचेस की है ना. एक अप्रोच थी ADAS, अगर उस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने लिख देना एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम AD इज इक्वल टू AS. और अगर सेविंग वाले से रिलेटेड कुछ बात दी हुई है तो हम बस ऐसे ही लिख देंगे एट इक्विलिब्रियम लेवल सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. अब वेरी सिंपल, इन प्लेस ऑफ दिस सेविंग सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस सेविंग फंक्शन. ये एस फंक्शन है, ये आई फंक्शन है. ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. एस की जगह इसकी वैल्यू दैट इज दिस माइनस 40 प्लस 0.25y इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन 100, तो यहाँ 100 लिख दिया. बस अब आप बाकी के नंबर्स को आप राइट साइड पे ले आओ, लेफ्ट साइड पे कीप ओनली दैट थिंग विच इज टू बी कैलकुलेटेड. तो y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 0.25 इधर ही रहने दो, और ये माइनस के 40 व्हेन वी ब्रिंग दैट वैल्यू टूवर्ड्स राइट साइड, तो ये माइनस के इधर आके प्लस का 40 हो जाएगा. तो ये हो गया 100 प्लस 40 140. फिर y निकालना है, y इज इक्वल टू ये 140 डिवाइडेड बाय ये 0.25 इधर आके डिवाइड कर देगा. ये सारा कुछ आप चेक कर लो कैलकुलेशन करके. आप यू आर रिक्वेस्टेड टू डू द कैलकुलेशन. हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लीजिए. तो ये आ जाता है हमारे पास वैल्यू ₹560 करोड़. राइट. अच्छा, नाउ दिस वाज अवर फर्स्ट पार्ट. जो भी आपके पार्ट वाइज आंसर आएगा ना बेटे, एक ख्याल रखना है, उसको ऐसे सर्कल कर देना है या बॉक्स सा डाल देना ताकि हाईलाइट हो जाए हमारा ये फर्स्ट पार्ट है. नाउ सेकंड पूछा है लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम. ये क्वेश्चन मार्क है, ये मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए लिख दिया. लेवल ऑफ कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम ये निकालना है. तो अब क्या करेंगे? नाउ ऊपर वाले फंक्शन हमें दिया हुआ है सेविंग का, इनकम भी हमने निकाल ली, तो हम ये तरीका लगा सकते हैं कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग कर लें, क्योंकि हमें सेविंग फंक्शन तो दिया ही हुआ है. तो क्या करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं, सेविंग की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, जो भी सेविंग की वैल्यू आएगी उसको ये 560 में से माइनस कर देंगे. नाउ सी हाउ कैन वी डू दैट. तो सेविंग फंक्शन लिख लो फिर से, सेविंग इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 0.25. अब नाउ इन प्लेस ऑफ y, नाउ वी हैव गॉट वैल्यू ऑफ y 560. ये ऊपर वाले पार्ट में वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो y के प्लेस पे वी कैन राइट 560. अब आप इसको सारा कैलकुलेट कर लो, ये पॉइंट को हटा दें, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा. ये सारा करके आएगा 140 और ये माइनस के 40, तो 140 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, बच गया हमारे पास 100. ठीक है, तो ये अभी हमारे पास क्या आया है, दिस इज सेविंग. ठीक, और हमें पार्ट क्या था हमारा सेकंड, लेवल ऑफ कंजम्पशन निकालना है. तो कंजम्पशन का सिंपल फॉर्मूला, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग. सेविंग निकालनी हो तो इनकम माइनस कंजम्पशन कर लें, कंजम्पशन निकालनी हो तो इनकम माइनस सेविंग कर लें. तो ये आ गया 560 इनकम है ये वाली निकाली हुई, माइनस सेविंग ये निकाल दी हमने 100, तो बच गया हमारे पास ₹460 करोड़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब ये सेविंग हमने वैसे पहले निकाल लिया, थर्ड पार्ट पहले ही निकाल लिया था.
थर्ड निकालना है ना सेविंग, तो आप पार्ट ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब जब आपने करना है तो रफ काम पे करके आप देख लोगे आप सीक्वेंस में कैसे आप उसको लिख सकते हो. नाउ सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल, आई एम राइटिंग इट अगेन, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. तो 560 माइनस कंजम्पशन निकाला हुआ है 460, ये आ गया 100. चाहे तो हम ऐसे लिख दें, बात एक ही है. चाहे हमने ये पहले ही निकाल दिया, सेविंग फंक्शन में y की वैल्यू पुट करके निकाल दिया तो भी 100 है. मतलब आप ये वाला पार्ट है ना, जो ये वाली 2 लाइनें हैं, ये आपका थर्ड पार्ट निकल ही चुका है पहले, ठीक. और उसके बाद c की वैल्यू आपने निकाली. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. कोई भी वैल्यू निकाल लो पहले, हार्डली मैटर, तो इसलिए मैंने ये नीचे लिख दिया ना बोथ वेज. चाहे आप ऐसे लिख दो माइनस करके, चाहे आपने पहले ही निकाल ही चुके हैं तो यहाँ पर ही नंबर दिए 3 भी हो सकता था हमारा, जैसे मर्जी लिख सकते हैं. ठीक है जी. चलो लेट मी सी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. ठीक है बेटे, समझ आ रहा है? नवनीत, दिलप्रीत, कनिका, हर्षिता, क्लियर? ठीक है, वेरी गुड. चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी 22nd क्वेश्चन. नाउ प्लीज सी 22nd देखते हैं. ये भी बिल्कुल इसी टाइप का है. नाउ आप ट्राई करिए. सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज, आगे सेविंग फंक्शन दिया हुआ है -50 + 0.4y. इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एट द इनकम लेवल ऑफ ₹1500 करोड़. इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम मतलब वी आर ऑलरेडी टोल्ड कि जो इकोनॉमी में जब इक्विलिब्रियम लेवल है तो एट दैट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम जो है दैट इज 1500 करोड़. पहले ही बता दिया हमें. उसके बाद बताया है कि फाइंड आउट इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल, ऑटोनमस कंजम्पशन एंड मल्टीप्लायर. 3 चीज़ें निकाल दी हैं. चलो जी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो सबसे पहले कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट व्हाट इज गिवन. तो हमें गिवन क्या है? गिवन सेविंग फंक्शन गिवन है, एज इट इज लिख लीजिए. गिवन सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू -50 + 0.4y. ठीक. और क्या दिया हुआ है? व्हाट एल्स इज गिवन? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ब्रैकेट में इसको इसका नाम लिख लेते हैं. इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को क्या बोलते हैं? y. दैट इज गिवन 1500. ये 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं. अब क्या करना है? अब एक एक करके देखते हैं क्या निकालते हैं. फर्स्ट नंबर 1 ये वाला. ठीक. अब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सेविंग फंक्शन में ये इक्विलिब्रियम जो इनकम दी हुई है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. ये वाला y की प्लेस पे 1500 पुट करके पहले तो सेविंग ही निकालते हैं. तो ये आ गया -50, ये सेविंग फंक्शन लिखिए -50 + 0.4 और y की जगह ऑलरेडी y की वैल्यू दे हैव गिवन इन द स्टेटमेंट 1500. ठीक. तो व्हेन यू सॉल्व दिस पॉइंट, इसको आप करेंगे डिवाइडेड बाय ये 10 हो जाएगा. ये सारा कुछ करके आ जाएगा आपका ₹550 करोड़. ये आ जाएगा 600. ठीक है, ये वाला पार्ट 600 में से 50 माइनस करोगे तो यू विल गेट सेविंग इक्वल टू 550 करोड़. अब हमें पता है, पूछा क्या था उन्होंने फर्स्ट पार्ट, इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल. तो यहाँ पर देन यू नीड टू राइट वन लाइन कि नाउ वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पॉइंट व्हाट हैपन्स अकॉर्डिंग टू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो एट दैट लेवल इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. ये लिखना है आपने. ठीक है. तो एट लिख के एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. तो नाउ वी हैव गॉट दिस सेविंग वैल्यू 550. इसका मतलब जो सेविंग है वही हमारे लिए इन्वेस्टमेंट भी होगी. क्यों होगी? बिकॉज ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के ऊपर ही हम निकाल रहे हैं. ठीक. तो बस आपने दोबारा से लिख देना है सेविंग इज इक्वल टू ₹550 करोड़. इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 550 करोड़. क्यों? क्योंकि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो एक की वैल्यू है वही दूसरे की वैल्यू होगी. तो सेविंग की वैल्यू हमने निकाल ली, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की भी यही वैल्यू होगी. तो बस ऐसे लिख के आपने इसको ऐसे सर्कल कर देना है. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या दिया है? ऑटोनमस कंजम्पशन निकालना है. ऑटोनमस कंजम्पशन. नाउ ऑटोनमस कंजम्पशन वेरी इजी. अब आप पहले देखो, वैसे तो हमें चाहिए ऑटोनमस कंजम्पशन के लिए कंजम्पशन फंक्शन, बट हम यहाँ से भी इस विद द हेल्प ऑफ दिस सेविंग फंक्शन ऑल्सो वी कैन सी. तो ये सेविंग फंक्शन में ये वाला जो पार्ट होता है नेगेटिव वैल्यू, वो क्या होती है? डिस सेविंग है ना. ये -50 डिस सेविंग है, ये 0.4 MPS है, ये y तो इनकम लेवल ही है. तो जो चीज़ सेविंग फंक्शन में डिस सेविंग होती है, द सेम वैल्यू इन कंजम्पशन फंक्शन, दैट वैल्यू इज ऑटोनमस कंजम्पशन, और वो प्लस में होती है.
प्लस में इस करके ये यहाँ पर ये -50 का ये मतलब है ना कि जब जीरो इनकम थी तो पुरानी सेविंग्स को निकाल के खर्च कर रहे थे। तो इसी बात को दूसरे वर्ड्स में कह दें तो कंजम्पशन के वर्ड्स में कह दें तो कह देते हैं जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर जो भी हम खर्च करते हैं दैट इज ऑटोनमस कंजम्पशन। तो दैट मीन्स ये माइनस की जगह माइनस साइन को हटा देंगे, वी विल राइट हियर सिंपली ऑटोनमस कंजम्पशन इज ₹50 करोड़। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर है माइनस साइन छोड़ देना है, बाकी की जो भी वैल्यू है वो हमारे लिए ऑटोनमस कंजम्पशन है, बस साथ में ₹50 करोड़ लिख देना है। ये सेकेंड पार्ट है, ठीक। ये मैंने लिख दिया, आप और एक दो लाइन में एक्सप्लेन करना चाहते हो आपकी मर्जी है। बिकॉज दिस सेविंग्स आर ऑटोनमस कंजम्पशन, बस ये लिख देना है। नाउ थर्ड पार्ट, नाउ के इज इक्वल टू वट, के कैलकुलेट करना है। नाउ के का फॉर्मूला ये वाला लगा लेते हैं, के इज इक्वल टू 1/MPS। MPS क्यों लगाया? बिकॉज वी हैव बीन गिवन दिस सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन में हमें पता है इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, ये होगी माइनस सेविंग, ये होता है प्लस, ये होता है MPS, यही करते हैं ना, C बार प्लस BY। तो यहाँ पर ये B की वैल्यू मतलब MPS की वैल्यू है 0.4। तो यहाँ आप लिख लो साइड पे, गिवन MPS इज 0.4 C इन सेविंग फंक्शन। ये आपके लिए लिखा है, आपने नहीं लिखना, ये तो आपको बताने के लिए लिखा है, ठीक। तो बस अब MPS की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, 1/0.4। सॉल्व कर लें इसको सारे को, ये हो जाएगा 4/10, अपसाइड डाउन ये सारा कुछ कर कर आके आ जाएगा 2.5। ठीक है जी, 2.5। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ MPC, मान लो ये भी पूछते, तो बस कुछ नहीं करना, MPC की वैल्यू क्या हो जाना था, 1 में से ये MPS माइनस कर देनी थी, तो 1 - 0.4 फिर वो हो जाना था 0.6। ठीक है, 1 मार्क में कई बार ऐसा भी आ सकता है, तो बस MPC में से, MPC के लिए 1 में से ये माइनस कर दें। ठीक है, चलो नाउ लेट अस ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 25। हाँ जी बेटे, आप कोशिश करो, जिनको समझ आ रही है, आ गई है, दे कैन स्टार्ट ऑन देयर ओन। मैं तो सभी के लिए करवा रही हूँ ना, सबको धीरे धीरे समझ आ जाए। जो बच्चे जल्दी कर सकते हैं दे कैन डू एंड देन दे कैन क्रॉस चेक योर देयर आंसर। C function is given, C is equal to 600. I am talking about 25th question. In an economy, consumption function C is 600 plus 0.9y, where C is consumption expenditure and y is income. Calculate the equilibrium level of income and consumption expenditure when investment expenditure is 500. ठीक, अच्छा, जो निकालना है वो आराम से निकालते हैं। पहला काम ये करना है, लेट अस राइट व्हाट इज गिवन। तो वी हैव बीन गिवन दिस, C इज इक्वल टू 600, ये लिख दिया, पॉइंट प्लस 0.9y, फिर और क्या दिया, गिवन इन्वेस्टमेंट इज गिवन 500, ये लिख लिया। अब क्या करना है, पहला हमने निकालना क्या था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो नाउ वी नो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ऐसे लिख के AD इज इक्वल टू AS या AS इज इक्वल टू AD। अब बोलने में हम जो इजी लगता है वो ऐसे बोलते हैं AD इज इक्वल टू AS, ठीक है। बट जब इक्वेशन होती है तो इक्वेशन में नॉर्मली y को ही निकालना होता है, तो इस करके हम AS को इधर लिख देते हैं, इट हार्डली मैटर्स। ठीक है, जैसे हम कहें 5 इज इक्वल टू 3 + 2, तो हम किसी तरह भी लिख सकते हैं, 3 + 2 इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, या 5 इज इक्वल टू 3 + 2 भी लिख सकते हैं ना, दोनों ही तरीके हैं। तो क्योंकि y निकालना होता है, इस करके फिर AS को इस साइड पे लिख लेते हैं। तो अब AS की जगह वी कैन राइट y, बिकॉज AS का ही दूसरा नाम y है। AD की जगह उसके कंपोनेंट्स लिख लेते हैं C + I। नाउ y तो कैलकुलेट करना है एज इट इज, y इज इक्वल टू C की जगह C फंक्शन, ये पुट कर दें वैल्यू 600 + 0.9y प्लस इन्वेस्टमेंट, ये वाला इन्वेस्टमेंट, ये ऑलरेडी गिवन 500। ठीक, अब आप कैलकुलेट करो, ये 0.9y इधर आके माइनस हो जाएगा, बच गया 0.1y इज इक्वल टू, ये 6 और 500 ऐड कर दें, ये आ गया 1100, और सारा कुछ कर करा के अब आप निकालो, y आ जाता है हमारे पास ₹11,000 करोड़। ठीक है जी, श्रेया, कालरा, ईशिता, शिवांशी, समझ आ रहा है बेटे? ठीक है, तो ये आपने, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 11,000 करोड़। अब सेकंड क्या निकालना था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट दिस इक्विलिब्रियम लेवल। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वेरी सिंपल, C फंक्शन ऑलरेडी ये दिया ही हुआ है, पहले ही दिया है, बस y की जगह जो हमने ये इक्विलिब्रियम इनकम निकाली है, बस उस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये बन गया हमारे पास C इज इक्वल टू 600 प्लस 0.9, ये फंक्शन यही लिख रहे हैं हम लोग, और y की जगह जो ये y की वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू कौन सी है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है।
तो ये 11,000। अब इस सारे को सॉल्व कर लो, ये 0.9 के नीचे हो जाएगा 9/10, 0 0 कट जाएगी, बाकी बच गया हमारे पास ये कितना है, ये लेट मी सी, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 25। हाँ जी 9900 प्लस ये 600, तो ये आ गया, एक्चुअली मुझे ये 0 दिख रहा था, इट इज़ 10,500। ऐड कर लो, आप चेक कर लो ज़रा, ये 10,500 करोड़ रुपीज़ करोड़। ठीक है, बस यही दो चीज़ें निकालनी थी इस क्वेश्चन में, एक इनकम निकाल लिया, ये इनकम का हो गया, और ये अगला हमारा हो गया कंजम्पशन। दिस क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, चलो लेट अस ट्राई सम अदर क्वेश्चन। बस इसी टाइप के हैं, आगे सो मेनी क्वेश्चंस आर गिवन, आपने करके देखने हैं सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, हियर और देयर, कभी कोई चीज़ निकालनी है कभी कोई, तो इसी वे से आपने निकालना है। ठीक, हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नाउ प्लीज रीड द स्टेटमेंट। 26 question. In an economy, saving function is given -50 plus 0.5y, 0.5y. It is a saving function where cess is saving, y is national income, and investment expenditure is given 7,000 rupees. Calculate equilibrium level of national income. और सेकेंड निकालना है कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट दिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बिल्कुल उसी टाइप का है, बस अब हमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सेविंग फंक्शन दिया है, रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेम, पहले भी कर चुके हैं इसी टाइप का। तो लेट अस राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वट एवर इज गिवन, ये दिया हुआ है सेविंग फंक्शन एज इट इज लिख लो, -50 प्लस 0.5y, इन्वेस्टमेंट इज गिवन 7,000, ये लिख लिया। ठीक, नाउ अब आप लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम लेवल, एट पहले लिखना है, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम व्हाट इज देयर, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। बस आपने ध्यान ये रखना है कि कोई कोई क्वेश्चंस में हमें ADAS अप्रोच वाली वैल्यूज दी होती हैं, और कई कई क्वेश्चंस में हमें सेविंग इन्वेस्टमेंट वाली होती हैं। तो बस जो भी अप्रोच से रिलेटेड है उसी तरीके की वैल्यू फॉर्मूला आपने लगा देना है। अब क्योंकि यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट है, तो अपनी मतलब अपने आप सोच के हमने लगा लेना है ये वाला तरीका कि एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। नाउ इन प्लेस ऑफ दिस सेविंग फंक्शन, ये सेविंग नहीं है मतलब सेविंग फंक्शन है, तो पुट द वैल्यू ऑफ दिस सेविंग फंक्शन -50 प्लस 0.5y इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के प्लेस पे उसकी वैल्यू जो दी हुई है 7,000, ये लिख दिया। अब 0.5 इधर ही रह गया, ये माइनस के 50 इधर आके प्लस हो गए, ये आ गया 7050। y निकालेंगे, y इज इक्वल टू 0.5 विल कम टू दिस साइड एंड डिवाइड दिस वैल्यू, ये सारा डिवाइड कर कर आके आ जाएगा ₹14,100 करोड़। ठीक है, ये तो सिंपल इक्वेशंस है, आपने 9th-10th में किया ही हुआ है। जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई कर रही है, व्हेन वी ब्रिंग दैट वैल्यू टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, तो क्या हो जाता है, दूसरी साइड पे आके वो वैल्यू डिवाइड कर देगी। ठीक, ये आ गया 14,100। नाउ सेकंड निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ये निकालना है। नाउ वी नो कंजम्पशन का फॉर्मूला, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग, वाई माइनस सेविंग। ये वाला ही तरीका क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेविंग फंक्शन है ना, तो सेविंग फंक्शन में y की वैल्यू पुट करके हम वेरी इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेविंग। तो सेविंग की वैल्यू पता चल जाएगी, इनकम की निकाल ही ली है, तो बस डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक, तो अब आ जाएगा हमारा, ये पहले आप सेविंग निकाल लो, सेविंग फंक्शन में वैल्यूज पुट करके, सेविंग इज इक्वल टू -50, यही वाला लिख रहे हैं, ये वाला -50 प्लस 0.5 ये वाला। नाउ ये y की प्लेस पे, ये वाले y की जगह, now put the value of y, that is already we have got 14,100, जो निकाले जो भी वैल्यू आई होगी वो यहाँ लिख दिया। अब आप ये पॉइंट को सॉल्व कर लो, ये सारा कर कर आके आपका आएगा 7,000 रुपीज, 7,000। ठीक, तो अभी आपको मिला है, यू हैव जस्ट गॉट सेविंग बट क्वेश्चन वाज कंजम्पशन, तो नाउ यूज दिस फॉर्मूला, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग। तो इनकम है हमारे पास पहले ही निकाली हुई है, ये वाली इक्विलिब्रियम इनकम 14,100, ये लिख दिया, माइनस सेविंग वी हैव कैलकुलेटेड 7,000, ये माइनस कर दिया, बच गया ₹77,100।
ठीक है, मतलब क्यों ये ऐसे इस करके किया, क्योंकि सेविंग फंक्शन दिया था ना, तो सेविंग फंक्शन में y की वैल्यू पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप इस सेविंग फंक्शन को कंजम्पशन फंक्शन में भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना, आपकी चॉइस है। आप अगर मान लो आप उस तरह से करके देखते हो, आप कर लो, अभी बैठे बैठे आप कर लो। अगर आप कंजम्पशन फंक्शन बनाते हो तो आपका क्या फंक्शन बनेगा, c इज इक्वल टू 50 प्लस के 50 हो जाएंगे ना, ऑटोनमस कंजम्पशन, प्लस ये 0.5 क्या था, ये एम पी एस है, तो क्योंकि 0.5 है तो एम पी सी क्या हो जाएगी, वो भी 1 माइनस 0.5 इतनी रहेगी। वाई की जगह आप ये करो, 14,100 वैल्यू पुट करके देखो तो भी आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मैंने ये नीचे भी लिख दिया है, और वी कैन फाइंड कंजम्पशन बाय गेटिंग सी फंक्शन एंड देन पुट वैल्यू ऑफ वाई एंड वी विल गेट सी की वैल्यू। बट वो क्यों चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें जो दिया है आराम से उसी में वैल्यू पुट करके निकाल लें। तो पहले सेविंग निकाल लो उसको, फिर इनकम में से माइनस कर लो, राइट। चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एज मेनी एज पॉसिबल वी कैन डू। नाउ 28th क्वेश्चन, लेट अस सी बेटे 28th क्वेश्चन। द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज, आगे दिया हुआ है c इज इक्वल टू 75 प्लस 0.75y and autonomous investment is 100. Derive the saving function and calculate the level of income at which saving is equal to investment. Now, very easy. पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है हमें। दिस इज गिवन c इज इक्वल टू 75 प्लस 0.75 ये दिया हुआ है, और ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट आई ए नहीं भी लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट इज गिवन 100। ठीक, नाउ एज पर दिस सी फंक्शन वी कैन कम टू नो कि ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू है, दिस इज एम पी सी। ए प्लस बी वाई करते हैं ना, तो ये वैल्यू बी का मतलब कंजम्पशन फंक्शन में एम पी सी, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो हेयर आई हैव रिटन एम पी सी इज इक्वल टू 0.75। अब अगर एम पी सी हमें पता है तो हम वी कैन कैलकुलेट एम पी एस। तो एम पी एस का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी, दैट इज 1 माइनस, अगर ये 0.75 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बच गया 0.25, वो क्या है हमारे लिए एम पी एस हो गया। ठीक, अच्छा अब दूसरा क्या पूछा हुआ था हमें, डिराइव द सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन पहले आप फॉर्मूला लिखना, इक्वेशन वो लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। मैं जल्दी में लिखना भूल गई, आप लिख सकते हो पहले, एस इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, फिर साइड पे लिखना है वेयर सी बार मीन्स डिस सेविंग्स, बी मीन्स एम पी एस, वाई मीन्स इनकम। ठीक, फिर आप उसके बाद वैल्यू पुट करो। नाउ डिस सेविंग कितनी हो गई, अगर कंजम्पशन फंक्शन में ये ऑटोनमस कंजम्पशन है तो वही वैल्यू सेविंग फंक्शन में होती है डिस सेविंग, बस करना क्या होता है साथ में माइनस साइन इज टू बी अप्लाइड। जो भी ये वैल्यू है ये ऑटोनमस कंजम्पशन है एज पर दिस सी फंक्शन, बट हमने बनाना क्या है, एस फंक्शन बनाना है, तो वैल्यू वही रहेगी बट उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा, इसका मतलब ये -75 होगी डिस सेविंग्स, प्लस यही वाला रहता है फॉर इक्वेशन का ही। अब यहाँ पर क्या लिखना है, एम पी एस की वैल्यू, तो एम पी एस की वैल्यू क्या है हमने निकाला हुआ ये 0.25, ये लिख दिया 0.25, वाई एज सच ही रहता है, बस ये इसको आप सर्कल कर दो, ये बन गया हमारा सेविंग फंक्शन, एक पार्ट हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद सेकंड पूछा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट निकालिए, दैट लेवल ऑफ इनकम निकालना है जिसपे सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल है। तो बस ये 2-4 वर्ड लिख लेंगे अपनी ओर से, द लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये निकालना है। तो अब कुछ नहीं करना, सेविंग की जगह सेविंग फंक्शन, ये वाला सेविंग फंक्शन पुट कर दो वैल्यू, इज इक्वल टू के बाद इन्वेस्टमेंट की जगह ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ये वाला जो है वही लिख देना, -75 प्लस 0.25 वाई इज इक्वल टू 100, ये -75 ब्रिंग दिस वैल्यू टू द राइट साइड, ये इधर आके प्लस हो गया 175, बच गया था हमारे पास 0.25 वाई। अब वाई इज इक्वल टू ये 0.25 इधर आके इट विल डिवाइड दिस वैल्यू ऑफ 175, इसको डिवाइड कर देगा तो ये बच जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन करके 700। तो ये आंसर आ गया हमारा, y इज इक्वल टू, ये कौन सा y है, दिस y इज दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है ₹700 करोड़। ठीक है जी, सो ये दिस वाज अवर 28th क्वेश्चन।
नाउ मिसलेनियस क्वेश्चंस. इन माई बुक मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 30 से लेके आगे 54 तक दिए हुए हैं. अब ये मिसलेनियस में कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सेम फार्मूलाज हैं जो पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लगाए हैं, उसके बाद ये डिटर्मिनेशन वाले क्वेश्चंस किए हैं. अब सबको मिक्स करके दिया हुआ है. ठीक है, मिक्स्ड फॉर्म में है. जैसे होता है ना बचे हुए क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो भी बचे कुचे रह गए तो वो मिसलेनियस करके नाम दे देते हैं. तो ये क्वेश्चन में नो न्यू फार्मूला इज देयर, सेम फार्मूलाज उन्हीं को हमने अप्लाई करके निकालना है. तो मैंने 2-3 क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी के आपने अपने आप करने हैं. In case you face any difficulty in any of the questions, you are requested to send me the message. ठीक है, टेक्स्ट मैसेज ऑन माई पर्सनल नंबर. क्वेश्चन की स्टेटमेंट की पिक लेके आपने मुझे सेंड कर देना, तो मैं उसको सॉल्व करके मैं ग्रुप में ही डाल दूंगी. ठीक, बट आई फुली होप कि आप सब कर लोगे, क्योंकि हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं. तो लेट अस डू 1 or 2 more क्वेश्चन. नाउ आई एम, ये बाकी के सब सिंपल हैं. 47th क्वेश्चन आई हैव टेकन. ठीक है जी, लेट अस सी क्या दिया हुआ है. 47 क्वेश्चन इज फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो अबाउट एन इकोनॉमी कैलकुलेट नंबर 1 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड सेकंड